Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, primary occupations. Students, we have learned about the major occupation based economic activities which is practiced by man in the previous chapter, right? हमने अपने previous chapter में बहुत सारे occupation की बात की थी. सीखा हमने कि human का occupation जो है, कि economic activity जो है, वो differentiating होती है और अकॉर्डिंग टू वर्क इसको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं. और हमने क्या पता किया कि देयर आर 5 काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary एंड क्वीनरी. So out of all the 5, today in this chapter we are going to start getting the description, getting the brief or detailed information about the primary occupation. Let me start. Students, world's primary occupation are mentioned below, and these world primary occupations are hunting, gathering, fishing, animal grazing, agriculture, lumbering and mining. I know you understand these terms well. आपको पता है hunting क्या होती है, gathering क्या होती है, fishing या animal grazing क्या होती है. ये सारे terms आपने सुने हैं and you are very much aware by these terms. So let me introduce these terms separately. First of all, I am going to take the first term, hunting. Hunting is the first or ancient activity which is done by human. So this occupation is believed to be the world's oldest occupation. इस occupation को, इस hunting को वर्ल्ड का सबसे oldest occupation माना जाता है. And it requires least number of person. इसमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती काम करने को, एक व्यक्ति भी हंटिंग कर सकता है. बट इफ वी कंपेयर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अदर, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया. इसके लिए भले ही नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं चाहिए, पर इट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया. एंड इन दिस ऑक्यूपेशन लाइवलीहुड इज मेंटेन्ड at a minimum level. People wander across different regions to arrange food. हंटिंग करना है तो ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह पर अपना शिकार, अपना खाना ढूंढना पड़ता है. और यहाँ पर हंटिंग जो है सिर्फ भोजन के लिए नहीं, बल्कि हंट किया हुआ एनिमल वेरियस टाइप से यूजफुल था. क्लोथ भी बन जाते थे स्किन से, शेल्टर भी बोन से बन जाता था. So students, basically the people residing in severely cold and extremely hot regions depend on the hunting for their survival. This activity is undertaken by living as a sprawler life in harsh climate. Sprawler वाली life होती है, घुमक्कड़, एक बार यहाँ एक बार वहाँ. And a very important thing is that very less capital and very low level of technical knowledge is required for this kind of occupation. But one problem is that there is no food surplus in them. Hunters use sharp tools, poison arrows, and nooses, etc. for hunting. And many animal species are either extinct or are endangered due to illegal hunting. लेकिन लगातार हंटिंग से हुआ क्या? इस हंटिंग ने बहुत सारे एनिमल स्पीसीज को धीरे धीरे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया. और इसीलिए आज ये जो ऑक्यूपेशन है लगभग पूरे वर्ल्ड में इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है. एंड इन इंडिया इट्स कंप्लीटली बैंड. ओनली सम रीजन्स and only few inhabitants earn their livelihood by hunting, and basically they are called tribal peoples. So hunting is an occupation in the tundra and taiga regions of Canada by Eskimos,
in the northern Siberia by Samoyeds, Tung, Yakut, Mai, Chukchi, Koryak, etc. tribes, in Kalahari Desert by Bushmen, in Congo Basin by Pygmies, in Malwa by Semang and Sakai tribes. So these are the reasons and these are the people who engaged in this kind of work. In Borneo by Punan, in New Guinea by Papuans, and in Amazon Basin by Zivaro and Yagua tribes. They are practicing hunting for their survival. So at present, their reasons are getting quite limited. At many places, the tribal people engaged in hunting are living a settled life by living in permanent houses. आजकल ये जो हंटिंग है धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इलीगल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया है, तो इसीलिए अब ये काफी लिमिटेड एरिया में ही कुछ लिमिटेड ट्राइबल पीपल के द्वारा ही किया जाता है. Hope you guys understand the term hunting well. Now let's move to the second term, that is gathering. From the economic point of view, food gathering is also a very oldest and lowest human occupation. अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फूड गैदरिंग भी एक तरीके का बहुत पुराना और बहुत ही लोएस्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, और इसका इम्पोर्टेंस जो है इस ऑक्यूपेशन का डे बाय डे डिक्लाइनिंग होता जा रहा है सोशल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण. ह्यूमन सोशली और टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो गया है, तो अब वो इस तरीके से गैदरिंग वाला जो वर्क है उसे नहीं करना पसंद करता. So hardly very few thousand peoples are engaged in it. Man has been gathering various kinds of things for food, clothes, shelter, and other necessities. Basically, the people engaged in this occupation gather fruits, root tubers, nuts, berries, roots, leaves, etc. ये वो चीजें हैं जिसको गैदर करने के लिए, जिसको पाने के लिए ह्यूमन जो है गैदरिंग करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह इनके सर्च में घूमता रहता है. These people do not cultivate and do not domesticated animals. जो गैदरिंग करते हैं ऐसे लोग सेटल लाइफ भी नहीं जीते, कल्टीवेशन भी नहीं करते और ना ही इनके पास लाइव स्टॉक होता है. So the things that are they obtained by least efforts, the major areas of gathering occupations are, ये लोग जो भी काम करते हैं बहुत ही कम एफर्ट लगा करके जो कुछ उनको मिल जाता है उसको ले आते हैं. और बेसिकली पूरे वर्ल्ड में वो कौन कौन से एरिया है जहाँ पर ये ऑक्यूपेशन काफी ज्यादा प्रैक्टिसिंग है, वो एरिया है इन द मलाया पेनिनसुला बाय सिमांग एंड सकाई ट्राइब, इन अमेज़न बेसिन बाय बोरो ट्राइब, इन कालाहारी डेजर्ट बाय बुशमैन ट्राइब्स. These are some of the major areas of the world, and in mountainous region and in interior parts of Southeast Asia, these areas are practicing this kind of activity, gathering activity. Students, the activity of food gathering has been commercialized nowadays. इस मॉडर्न टाइम में जो फूड गैदरिंग का सिस्टम है ये कमर्शलाइज हो गया है, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग वाला हो गया है. आजकल जब ह्यूमन गैदरिंग करके चीजें लेकर के आता है तो सिर्फ उससे अपना कंजप्शन नहीं करता बल्कि उनको सेल कर देता है. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स, bark, medicinal plants, that everything is sold in the nearby market. Students, the bark of several trees is used for making quinine. छाल जो होती है पेड़ की वो क्विनीन बनाने के काम आती है. साथ ही लेदर और कॉक बनाया जाता है. लीव्स यूज होती है बेवरेजेस के लिए, मेडिसिन या कॉस्मेटिक बनाने में. फाइबर्स का यूज किया जाता है पेड़ों से मिलने वाले टेक्सटाइल बनाने में. ड्राई फ्रूट्स एज अ फूड यूज किया जाता है. कुछ ऐसे और भी चीजें जिसको ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज किया जाता है. ट्रंक का इस्तेमाल रबड़, बाल्टा, ग्लू और लाख बनाने में किया जाता है. So gathering does not have much importance at the global level. The products obtained from these activities cannot compete in the world trade market. लेकिन जिस तरीके का इसमें प्रोडक्ट कंज्यूम किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है
ये प्रोडक्ट जो हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में नहीं होती। ये कमर्शलाइजेशन है लेकिन लोकल कमर्शलाइजेशन, लोकल ट्रेड मार्केट में इनकी डिमांड। So hope you guys understand this term as well. Now let's move to the third topic, fishing. फिशिंग, मछली पालना, ये ऑक्यूपेशन जो है ये भी एंशिएंट टाइम से ही किया जा रहा है। बट इन दिस ऑक्यूपेशन मैन हैज टू कंटिन्यूसली स्ट्रगल अगेंस्ट द नेचुरल ऑब्स्टिकल। फिशिंग कहाँ करते हैं? ज्यादातर फिशिंग जो है समुद्री एरिया में किया जाता है, सी एरिया में किया जाता है, और या फिर अगर हम इनलैंड वाटर की बात करें तो पॉन्ड्स, puddles, rivers, channels, lakes and coastal areas are basically used for fishing. Fishes, they available naturally and they are caught in this occupation for subsistence. वैसे तो ज्यादातर हिस्से में लोग मछली इससे पकड़ते हैं ताकि उससे अपना फूड ले सकें. But apart from being used as food, fishes are caught for getting various products as well. And these products are like oil, leather, fodder for milk animal, etc. फर्टिलाइजर बनाने के भी काम आ रहा है. ठीक है, तो फिशिंग का ऑक्यूपेशन जो है वो सिर्फ फूड को कंजप्शन, फूड की तरह पे कंजप्शन करने के लिए नहीं बल्कि अदर रिक्वायरमेंट भी है. Nowadays fishing occupation has modernized due to the technological development and increasing demand, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन कवर बढ़ रहा है और मछलियां जो हैं अच्छा गुड सोर्स होती है न्यूट्रिशन का. तो ये भी एक वजह है कि आजकल फिशरी ऑक्यूपेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. फिशेज आर कॉट इन फ्रेश वाटर सोर्सेज, ओपन एंड कोस्टल एरियाज, एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिशेज आर फेस्ड एट कन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर. आपको पता है सबसे ज्यादा फिशेज कहाँ इजीली मिलती हैं? जहां पर कोल्ड और वार्म वाटर मीट करता है, वहां पर जहां पर समुद्र में ठंडे और गर्म पानी मिलते हैं उस जगह पर फिशरी काफी डेवलप होती है और ऐसे एरियाज को ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है. Here some of the major reasons given where this kind of activity practicing, and these areas are coastal region of North Pacific Ocean, जापान वगैरह वाला इलाके की बात कर रहे हैं हम लोग, कोस्टल अमेरिकन रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन रीजन एंड जापान सी रीजन. They are the major important areas where the cold and warm currents meet, and this place are good for fishery. Right? Now, fourth topic, livestock rearing. Livestock क्या होता है? जानवर, cattle. So man adopted animal rearing as an occupation. आज ह्यूमन ने कैमल एनिमल रियरिंग को एज एन ऑक्यूपेशन यूज कर लिया है. When human groups dependent on hunting and gathering realized that these could not provide them proper means of livelihood. और ऐसा कब हुआ? जब ह्यूमन ग्रुप जो कि डिपेंड करता था हंटिंग और गैदरिंग पर और उसको जब रियलाइज हो गया कि हंटिंग और गैदरिंग से प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं प्रोवाइड हो सकता है, तब इस रियलाइजेशन के बाद में ह्यूमन ने शुरू किया डोमेस्टिकेशन करना एनिमल्स का. So people living in different natural conditions selected animals found in their region and domesticated them. क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं बेटा लोग? जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरमेंट में जो भी एनिमल बीइंग अच्छे से सरवाइव करते हैं उनको अपने नीड को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं. और इनके नीड्स क्या होते हैं? इनसे फूड, लेदर और वुल एटसेट्रा लेना. So this occupation is primarily practiced in the region of warm and dry or temperate and dry climate, and also in the region with uneven and hilly terrain. तो ऐसे जो एरियाज होते हैं जो बहुत ही वार्म और ड्राई हों, जो टेम्परेट और ड्राई एरियाज हों, जहाँ क्लाइमेट टेम्परेट वाली और ड्राई क्लाइमेट हो, या फिर अनइवन हिली टेराइन एरिया हो,
ऐसे इलाके में, क्योंकि अदर ऑक्यूपेशन तो पॉसिबल होता नहीं है, खेती वगैरह करना तो बहुत मुश्किल है इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो बेसिकली यहाँ के लोग अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल हर्डिंग करते हैं। चलिए जरा हम देखते हैं कौन कौन से एरियाज हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया। इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कुछ ऐसे समझ, छोटा सा रफ इमेज बनाती हूँ मैं। 0 डिग्री, 23, 30 नॉर्थ, 23 डिग्री 13 साउथ, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बेटा 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है ट्रॉपिकल हिस्सा। इसके ऊपर का आर्कटिक सर्किल तक का हिस्सा ये कहलाता है टेम्परेट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रासलैंड की, और ये ग्रासलैंड कहाँ से कहाँ तक है? 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच। स्पेशलिटी होती है यहाँ पे एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम होता है, और हाइट जो है ग्रासेस की वो 1.8 से 3 मीटर्स तक होती है। यानी कि जैसी घास हमारे यहाँ पाई जाती है उससे उस मुकाबले काफी बड़ी बड़ी घास है। तो ऐसा ग्रासलैंड कहाँ है भाई? These grasslands are known as savanna in Sudan. सुडान कहाँ है? अफ्रीका में। लानोस इन वेनेजुएला, पंपास इन ब्राजील एंड पार्कलैंड इन साउथ अफ्रीका। ये है सारे वो ग्रासलैंड जहाँ पर एनिमल रियरिंग किया जाता है, और इन ग्रासलैंड को अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड, मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल से लेकर के आर्कटिक तक के बीच का हिस्सा जो है, यानी कि 23 से 66 डिग्री के बीच का ये हिस्सा टेम्परेट कहलाता है। लेकिन ग्रासलैंड जो है वो ज्यादातर 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे रेनफॉल एवरेज ट्रॉपिकल के भी कंपैरिजन में हाफ होती है, 50%, नियरली 50 सेंटीमीटर। And basically these grasslands are known as steppes in Russia, prairies in USA and downs in Australia. तो इन ग्रासलैंड में भी क्या होता है? एनिमल रियरिंग होता है। इनके अलावा कुछ एरिड रीजन्स भी हैं, जैसे डेजर्ट एरियाज, थार, कालाहारी और अरेबियन डेजर्ट। यहाँ भी क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही हार्श होता है, हॉट और ड्राई होता है, तो खेती करना तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ के लोग भी क्या करते हैं? एनिमल रियरिंग। और फिर जैसा पहले बताया था कि अनइवन जो एरियाज होते हैं जिसे हम माउंटेनियस रीजन कहते हैं, वो एरियाज भी दे आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, सो हियर आल्सो पीपल प्रैक्टिसिंग व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? एनिमल रियरिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी, राइट। अब ये जो एनिमल रियरिंग करने वाले लोग जो हैं, इनको भी ग्रुप्ड किया जाता है पेस्टोरल नोमैडिज्म में, और सेकंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है बेटा? पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है ये प्राइमरी बेसिक एक्टिविटी है जो सिर्फ अपने सबसिस्टेंस के लिए की जाती है। See, nomadic herding is basically an activity for subsistence. It is simplest form of animal herding where animals mainly depend upon natural vegetation. इसमें एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि क्या होता है, इसमें एनिमल जो भी नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल होते हैं उनसे ही अपना लाइफ सस्टेन करते हैं। लैंड का एक्सटेंसिव यूज होता है, एनिमल सिर्फ हेल्थ होते हैं लोगों के। नॉमेडिक हर्डर्स जो हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स में रहते हैं। एनिमल हर्डिंग प्रिमिटिव तरीके का होता है, और इसमें सीजनल माइग्रेशन भी आम है। अब जरा बात करें कौन कौन से एरिया में कौन कौन से अब जरा बात करें कौन कौन से एरिया में कौन कौन से एनिमल्स रियरिंग का काम होता है। कैमल्स इन साउथ वेस्ट एशिया एंड सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका,
whereas ships, goats, cows, horse, donkeys and mules found in Arabian Peninsula get domesticate in these regions like Iran, Iraq, Afghanistan. They domesticated basically mules. Yaks in high mountainous regions, and in Central Asia and basically in tundra region, the reindeer and the caribou are domesticated. ये अकॉर्डिंग टू एरियाज है जहां पर जिस तरीके का लाइव स्टॉक होता है, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन का जैसा लाइव स्टॉक मिलता है उसको रेयरिंग की जाती है. गुज्जर, बकरवाल एंड गड्डी भूटिया, these are some of the migrated tribal people found in the plain to mountainous region. They migrate, they living in the Indian landmass. यानी कि जो गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भूटिया हैं, ये माइग्रेटरी पीपल हैं. ये माइग्रेशन प्लेन से माउंटेनियस रीजन में करते हैं और इनका माइग्रेशन सीजनल होता है. समर में ये लोग माउंटेनियस एरिया में चले जाते हैं और विंटर में ये वापस प्लेन एरियाज में आ जाते हैं. हिमालय रीजन में ये वाले सारे नोमैडिक पीपल्स डिसाइड करते हैं. The number of area of nomadic herders are decreasing continuously. Why? Because of two reasons. First, restriction of political boundaries and plans of new settlement by many countries. एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री का रेस्ट्रिक्शन हो गया है, इसकी वजह से ज्यादा हर्डिंग पॉसिबल नहीं है. पहले तो क्या होता था, हम अपना एग्जांपल लें, पहले इंडिया से हर्डर्स शुरू होते थे और पाकिस्तान तक अपने जानवरों को ले जाते थे. ऐसे ही पाकिस्तान के भी जानवर, क्योंकि ये सब एक था, लेकिन क्योंकि अब ये पॉलिटिकल बाउंड्री सेपरेट हो गई हैं, ऐसे ही अदर कंट्रीज में भी ऐसा ही है. पॉलिटिकल बाउंड्री के सेपरेशन के कारण ये हर्डिंग जो है लिमिटेड हो गई है. और दूसरा, आजकल गवर्नमेंट ने जो है हर कंट्री में प्लान सेटलमेंट शुरू किए हैं. तो उन प्लान सेटलमेंट के लिए भी ये जो ब्लैंक एरियाज हैं, बेसिकली ग्रासलैंड में होता है ये सब, और एक ग्रासलैंड में भी अब बिल्डिंग्स बनने लगी हैं. तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से एनिमल रियरिंग काफी लिमिटेड हो गया है. नॉमेडिक हर्डिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल रैंचिंग. वही नॉमेडिक हर्डिंग को कमर्शियल रैंचिंग ने भी रिप्लेस कर दिया है. कमर्शियल रैंचिंग क्या होती है ये हम आगे वाले पैराग्राफ में देखेंगे. कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग और रैंचिंग में बेसिकली नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर परमानेंट एग्रीकल्चर की जगह पे नॉमेडिक हर्डिंग होती है. लेकिन कॉटन इज बीन कल्टिवेटेड इन रशियन रिपब्लिक बाय अरेंजिंग इरिगेशन. हुआ क्या है, पहले जो एरियाज थे रशिया के, ग्रासलैंड एरियाज, स्टेपीज ऑफ साउदर्न रशिया, यहाँ पर पहले तो नॉमेडिक हर्डिंग होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉटन के कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, काफी अरेंजमेंट्स किए हैं इरिगेशन वगैरह के. तो इसकी वजह से जो हर्डर्स हैं इन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया है. चलिए अब आगे बात करते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की या फिर रैंचिंग की. अभी जो वर्ड आया था उस पर डिस्कस करते हैं. The growth in the needs of man and progress in knowledge and science has brought major changes in animal herding occupation. आज ह्यूमन काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, काफी प्रोग्रेसिव हो गया है, काफी नॉलेजेबल हो रहा है, और इन सबका असर ह्यूमन के इस ऑक्यूपेशन में देखने को भी मिलता है. इस तरीके से एनिमल हर्डिंग अब वास्ट रीजन में और सिस्टमैटिकली कमर्शियल लेवल पर होने लगी है. How? There are some of the features of this kind of animal herding. First, it is more systematic and capital intensive. पहले जहां नॉमेडिक हर्डिंग जो थी लेस कैपिटल इंटेंसिव थी, वहीं इस तरीके का सिस्टमैटिक मैनर में किया जाने वाला एनिमल हर्डिंग काफी कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, फॉडर की व्यवस्था की जाती है, इसमें लार्ज फार्म्स बिल्डअप होते हैं, और जहां पर लार्ज फार्म्स होते हैं एनिमल्स के लिए, रेयरिंग के लिए, उन्हें ही रेंचेस कहा जाता है. दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, ध्यान दीजिएगा. एनिमल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली. जो भी एनिमल प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि वुल,
और लेदर वगैरह है ना, स्किन से जो बनता है, इन सब की प्रोसेसिंग होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग इनको एक्सपोर्ट किया जाता है ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि कमर्शियल है, प्रॉफिट अर्निंग इनका मेन मोटिव होता है। कोशिश की जाती है कि रॉटिंग से बचाया जा सके प्रोडक्ट को, रॉटिंग मतलब खराब होने से, और इसके लिए क्या काम किया जाता है, रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। स्पेशल अटेंशन दिया जाता है एनिमल के रिप्रोडक्शन पे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पर और डिजीज और हेल्थ इन सब की कंट्रोलिंग पर। ज्यादातर ये जो कमर्शियल रेंचिंग है ये टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज में बताया था मैंने। टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया लाइज बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। अगर हम एरिया वाइज बात करें कि ऐसे कौन से देश हैं जो ज्यादा ये रेंचिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, दे आर domesticated the animal as in commercial purpose for milk, whereas in Australia wool is the most requirement. United States of America have a special recognition for meat and milk production. Right? सबकी अपनी अपनी डिमांड है, अपने अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही एनिमल रियरिंग होती है। एंड कमर्शियल रैंचिंग इज प्रैक्टिस्ड इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन एंड हॉलैंड। ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर कमर्शियल रेंचिंग प्रैक्टिस होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द नॉमेडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल रेंचिंग। हालांकि अभी तक आपने जो भी चीजें सुनी उससे काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुके होंगे इन डिफरेंसेस से, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉमेडिक हर्डिंग क्या होती है, जिसमें पीपल मूव करता है वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए इन सर्च ऑफ फूड, फॉडर एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। जबकि कमर्शियल रेंचिंग में क्या होता है, एक ही जगह पर शेड्स बना करके और एनिमल्स को रखा जाता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता। एनिमल्स आर रियर्ड नेचुरली एंड नो स्पेशल केयर इज टेकन फॉर देम, whereas in commercial ranching the animal rearing is totally scientific and the ranchers taking very special care of the animals, बहुत ध्यान रखा जाता है। नॉमेडिक हर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम देखें तो उसका सबसिस्टेंस है। बेसिकली नॉमेडिक हर्डिंग सबसिस्टेंस के लिए किया जाता है, जबकि रेंचिंग जो है वो ट्रेड के लिए किया जाता है। एंशिएंट वर्ल्ड में या आज भी हम कहें तो नॉमेडिक हर्डिंग काफी लिमिटेड है, लेकिन रेंचिंग की अगर बात करें तो ये एक नया सिस्टम है और इसको बहुत सारे देश अपना रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड दीज एंटायर टर्म्स वेल। फ्रॉम एग्रीकल्चर वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।